इंटरनेट प्रॉब्लेम आलाय काहीतरी. मी शेअर करते हां एफोरिझम्स. 1 मिनिट. So this is about the complex disease. Now from the aphorism 42, the what happened when the two similar diseases are joined together. Nature herself permits, as has been stated, in some cases, the simultaneous occurrence of two natural diseases in one of the same body. So previously we have seen in the natural. एक second. So previously we have seen कि because of the treatment of these old school medicament, the one is natural disease and second one is a dissimilar artificial disease. They are joining and they are forming the complex disease. Second thing we have seen, that is a double complex disease, where the two natural diseases of equal strength, but they are having the dissimilar nature, so they are forming double complex disease. Now if the both the diseases which are natural, or it may be the one natural and one artificial, but their nature is similar, तो यहाँ पे क्या होगा, द नेचर हर सेल्फ परमिट एज बीन स्टेटेड इन सम केसेस द साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ टू नेचुरल डिसीज इन वन एंड द सेम बॉडी. सो साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ टू और थ्री नेचुरल डिसीजेस. तो यहाँ पे क्या होगा, दिस कॉम्प्लिकेशन हाउएवर इज मस्ट बी रिमार्क हैपन्स ओनली इन टू डिसिमिलर डिसीजेस. सो अगर सिमिलर है तो वहाँ पे क्योर होगा, लेकिन टू नेचुरल डिसीजेस है और वो भी डिसिमिलर है, सो यहाँ पे होगा डबल कॉम्प्लेक्स डिसीज. So one is natural, other one is artificial, having the same strength. Both are dissimilar. Complex disease will form. लेकिन both are natural, dissimilar, equal strength. Then that is a double complex disease, which according to the eternal law of nature do not remove, do not annihilate and cannot cure one another. So nature भी उसको cure नहीं कर रही है, though they are of equal strength, but as it seems both remain as it were separate in organism, so they will occupy their space according to their liking. Each take possession of the part and system peculiarly appropriate to it, which on account of want of resemblance of these remedy to each other and can very well happen without disagreement of the unity of life. So in this way, when the two natural diseases having the equal strength but dissimilar in nature, when they are joined, they will form double complex disease. That is given in the aphorism number 42. Now from 43, we will see the two similar diseases. Okay, clear? Anyone is having any doubt और कुछ पूछना है इसमें? Say only yes or no. Can you please repeat the aphorism 42? Okay.
So we have in the previously, that is in the aphorism number 35, we have seen कि these two dissimilar diseases are joined together by two ways, either by nature or by giving the allopathic medicament. So हमने जो पहले conditions देखे हैं, they are because of the old एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट से देखे हैं कि ओल्डर वन एक डिसीज पहले पेशेंट को था, अब न्यू डिसीज हो गया है बिकॉज ऑफ द रॉन्ग ट्रीटमेंट. सो ओल्ड वन अगर स्ट्रॉन्गर है या न्यू वन अगर स्ट्रॉन्गर है, सो ये सब कंडीशंस हमने देखे. अब थर्ड कंडीशन में ही हैज़ एक्सप्लेन कि नेचर अगर डिसीज प्रोड्यूस करती है डिसिमिलर डिसीज, तो क्या हो रहा है और एलोपैथिक मेडिकामेंट से क्या हो रहा है. सो वेन एवर यू आर टेकिंग द एलोपैथिक मेडिकामेंट, देयर ऑल्सो द कॉम्प्लेक्स डिसीज इज फॉर्मिंग. दो ही डिसीज रहते हैं लेकिन वो आर्टिफिशियल डिसिमिलर डिसीज रहता है. लेकिन नेचर अगर हर सेल्फ परमिट, एक डिसीज कोई तो भी है उसको और दूसरा डिसीज वो पेशेंट को हो रहा है, विच आर ऑफ डिसिमिलर कैरेक्टर. सो अकॉर्डिंग टू द इटर्नल लॉ, यानी 26 एफोरिज्म जो हमारा है उसमें क्या लिखा है कि द डिसीजेज शुड बी सिमिलर एंड स्ट्रॉन्गर फॉर द क्योर. लेकिन यहाँ पे नेचर डिसिमिलर डिसीज प्रोड्यूस कर रही है. सो वहाँ पे क्या हो रहा है, ना वो रिमूव हो रहा है, ना वो एनहिलेट हो रहा है, और ना वहाँ पे क्योर हो रहा है. जो वो वैसे की वैसे ही दे आर टेकिंग द पोजीशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स और द सिस्टम विच आर peculiarly appropriate to them. They are present at the same time in that particular organism. So सबसे पहले हमने जो पॉइंट दो देखे थे कि डिसिमिलर डिसीजेस आइदर दे आर प्रोड्यूसिंग बाय नेचर, तो भी वहाँ पे क्योर नहीं होगा. और अगर आर्टिफिशियल मेडिसिन देखी भी, अगर डिसिमिलर डिसीज अगर स्ट्रॉन्गर भी प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पे क्योर नहीं होगा. सो पहला पॉइंट हमने देखा है दैट इज रिगार्डिंग टू द मेडिकामेंट. एंड नाउ इन द 42 उन्होंने नेचर से भी वहाँ पे क्योर नहीं हो रहा है, दैट इज एक्सप्लेन. क्लियर जूही? यस मैम. सो पहले इसमें क्या है, दैट इज रिगार्डिंग द एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, एंड सेकंड इसमें नेचर. सो पहले इसमें फॉर्म होगा कॉम्प्लेक्स डिसीज, सेकंड इसमें फॉर्म होगा डबल कॉम्प्लेक्स डिसीज. ओके, नाउ इन द aphorism number 43, टोटली डिफरेंट. अभी एक दूसरा सिनारियो लेंगे. However, is the result when the two similar diseases meet together in the organism. अभी तक हमने देखा था two dissimilar. Now the similar, that is to say when to the disease already present as a stronger similar one is added. एक disease है patient को, now you are adding the similar disease which is a stronger one. In such cases, in both the way, either you can give the artificial agent or by nature itself. In such cases, we see how the cure can be effected by the operations of nature, and we get a lesson how man ought to cure. सो नेचर से भी ये सिमिलर डिसीज प्रोड्यूस हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल, दैट इज मैन जो यहाँ पे लिखा है. सो दोनों इसमें, दोनों कंडीशन में सिमिलर डिसीज अगर मीट टुगेदर होते हैं तो क्या होगा. जैसे हमने पहले देखा था दोनों कंडीशन लेके कि डिसिमिलर डिसीज अगर एक साथ हो गए तो क्या होगा. नाउ वी विल सी अबाउट द सिमिलर डिसीज. ओके, आई थिंक वी विल स्टॉप हियर. These conditions we will take in the next week. So if you have any query, you can ask. Any doubt, tomorrow also we will meet in a same fashion. I will give you the link. Somebody will take the attendance and we will move forward. Okay, so any doubt or any question? तीन कंडीशंस आपको अच्छे से लिखने हैं फॉर 20 मार्क क्वेश्चन. फॉर एमसीक्यू ऑल्सो यू हैव टू प्रिपेयर्ड वेल कि कौन से एफोरिज्म से कौन से एफोरिज्म तक कंडीशंस दी है, कौन से 2 पॉइंट्स हनीमा ने डिस्कस किए हैं कि डिसिमिलर डिसीज कैसे फॉर्म हो रहा है, नेचर भी प्रोड्यूस करती है तो भी क्योर नहीं हो रहा है, और अगर एलोपैथिक मेडिकामेंट भी आप देते हो तो भी वहाँ पे क्योर नहीं हो रहा है.
लेकिन एलोपैथिक मेडिकामेंट देने के बाद वहाँ पे कॉम्प्लेक्स डिसीज फॉर्म हो रहा है, और नेचर अगर परमिट करती है तो वहाँ पे डबल कॉम्प्लेक्स डिसीज फॉर्म हो रहा है। लेकिन इन बोथ द कंडीशन, जैसे मैंने आपको बोला था ना, थेरम हम लोग प्रूव करते थे, सो सिमिलरली यहाँ पे भी उन्होंने प्रूव कर दिया कि दोनों कंडीशन में पेशेंट इज नॉट गेटिंग रिलीफ। नेचर नेचर का हो या फिर मेडिकामेंट का हो, अगर डिसिमिलर डिसीजेस है, दो दे आर स्ट्रॉन्गर, दे विल नॉट बी एबल टू क्योर वन अनदर। अगर आपको चाहिए तो मैं प्रीवियस एफरिज्म आपको दिखाती हूँ। In the aphorism number 35, just see. In order to illustrate this, we shall consider the three different cases as well. What happens in nature when two dissimilar diseases, natural diseases, meet to one person? हाँ, nature है तो natural diseases, as also the result of, और दूसरा क्या है, as a result of ordinary medical treatment of disease with a unsuitable allopathic drug. तो दो कंडीशन यहाँ पे दिए थे, फर्स्ट नेचर प्रोड्यूस करेगी, या फिर दूसरा है मेडिकल ट्रीटमेंट बाय द एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, which are incapable of producing artificial morbid conditions similar to the disease to be cured. So nature भी वहाँ पे सिमिलर डिसीज प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, और मेडिकामेंट से तो हो ही नहीं रहा है। सो ये दो कंडीशंस या ये दो पार्ट्स उन्होंने एक्सप्लेन किए इन थ्री फॉर्म्स, कि टू डिसिमिलर डिसीजेस, ओल्ड एंड न्यू, स्ट्रॉन्गर है, वीकर है, एंड इक्वल स्ट्रेंथ है। ओके, so if you have any doubt you can ask. Okay, ठीक है, so Juhi, take the attendance, write it down, or you can give the screenshot also, no problem, post it in the group. Okay, so we will meet tomorrow. I will give it the link, in the same fashion we will meet. Okay, bye bye.